Good morning, students. Today we will discuss new chapter is economic thoughts. Okay, ये जो मैंने रेड मार्क क्रॉस करके किया हुआ है वो इस सिलेबस इस चैप्टर में से डिस्कस कर देना. Let's see the thoughts related to human life and economic activity like management of economy, production revenue, distribution, employment, money exchange, economic development, banking solutions of financial and environment problem are referred to as economic thoughts. ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक थॉट्स. इस चैप्टर में क्या है कि इकोनॉमिक थॉट्स अलग अलग जो इकोनॉमिक्स हैं उनके द्वारा इकोनॉमिक को लेके क्या क्या उनके में थॉट्स हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इस चैप्टर में बताया गया है. अब ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड है जैसे कि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड क्या है, थॉट्स है, और इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है, एक मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है. Many great thinkers in various countries have influenced decision of state administration regarding management of resources, production cost, distribution, and extra. Edmund Smith's ideas provide insight into how wealth it creates, distributed, and exchanged. जो एडमंड स्मिथ ने उनका क्या आइडिया था कि प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड, किस प्रकार से वेल्थ को क्रिएट करना होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सचेंज्ड, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और एक्सचेंज करना है. ये उनका क्या था, मेन आइडिया था. अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल प्रोवाइडेड importance of keeping human welfare at the center of decision making. Professor Robbins probed ideas pertaining to scarcity, problem of choice, and optimum utilization of resources. प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या प्रोवाइड किया था, उनकी क्या आइडिया था कि पर्टेनिंग टू स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम टू ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ऑफ रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसमें से उसको चॉइस करना. वाइल प्रोफेसर कैनिस provided a new direction to macroeconomics by giving principles regarding consumption, investment, employment, and government intervention after the Great Depression of 1929 to 830. Thus, such people contributed to modern economic thoughts in West. जो वेस्ट साइड है, जो वेस्ट साइड है उनके जो इकोनॉमिक्स से अलग अलग उन्होंने ये थॉट्स बताए हैं. Economic ideology is also reflected in Indian scriptures. Shanti Parva in Mahabharata, Manusmriti, Sukraniti, Kamandikiya reflected thoughts pertaining to economics in the Indian writing. Kautilya's अर्थशास्त्र ranks foremost. ये जो कौटिल्य का था, जो उसके जो उनके स्क्रिप्चर्स थे कौटिल्य की, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं. Numbers of thinkers have influenced Indian economic thoughts from the ancient times to the medieval times to the present day. This chapter gives an idea of the economic thoughts of Kautilya, Gandhiji, Pandit Deenदयाल उपाध्याय. अब हम आज देखेंगे, फर्स्ट देखते हैं हम गांधी जी के क्या थॉट्स है. फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. Societies change continuously and the purpose of change in development of the society. Such changes occur as phases of transformation, and in each phase of transformation
The society tends to follow the ideas and ideals of the some reformer. रिफॉर्मर मतलब जो भी काम करते हैं, जो भी लोगों को क्या हेल्प करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का वो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर। मतलब सुधारते हैं, हर एक काम को क्या करते, बिगड़े हुए काम को क्या करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर। Thus, the reformer in a way leads the change in the society, becomes the torch bearer, provide direction। जो टॉर्च बेरर बनाई, जो क्या करती है, डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, whom we know as Gandhi ji, was one such leader। Thoughts he had a strong willpower and was a ideals dreamer। He urged for a realistic and practical approach। उनका विचार, वो क्या थॉट, उनका स्ट्रॉन्ग क्या थी, विल पावर क्या थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, मतलब खुद कुछ कर जाना ऐसी उनकी विल पावर थी। एंड वो क्या सोचते थे, बहुत सारे सपने देखते थे, एंड वो प्रैक्टिकल करते थे, हर एक काम को क्या करते, प्रैक्टिकल तरीके से हर एक अपनी लाइफ में लेते थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर टू मेजर प्रिंसिपल्स, उनके टू मेजर प्रिंसिपल्स हैं। He practiced his ideology to remove the difference between thoughts and conduct। He emphasized on religion and ethics for individual and social life। Besides, he also made endless effort toward eradicating untouchability, persuading people to stop consumption of alcohol। उन्होंने क्या किया था, परसुएडिंग किया था, जो अल्कोहल लेते थे उन लोगों को क्या किया, उनसे उससे रोकने के लिए, उस कंजप्शन से रोकने के लिए लोगों को राजी नरमनी मनाते थे। अटेनिंग communal solidarity and empowering women। His way of living life and was based of ethics, so he accepted ethical science and the base science of पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो उन्होंने क्या किया था कि एक्सेप्ट किया था, क्या एक्सेप्ट किया था, एथिकल साइंस है, यानी जो उन्होंने पढ़ाई की थी ना, जब उन्होंने एथिकल साइंस एक्सेप्ट किया था, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स में उनको ज़्यादा एक्सेप्टेड करते थे। तो ये था गांधी जी के इंट्रोडक्शन था। अब क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग तरीके से, उनकी एक है, उनकी पहचान क्या है गांधी जी की, वो इसमें दी गई है। गांधी जी सिंपल वे ऑफ लाइफ इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स इन फ्रिक्वेंटली नोन एज गांधीज्म। गांधी जी की जो सिंपल वे था, क्या था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म था, वो फ्रिक्वेंटली क्या था, उनको जो शॉर्ट में बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, गांधीज्म। But unlike other economists, Gandhiji had not given a specific ideology। क्योंकि होता है ना कि अलग अलग उनको अनलाइक करते थे, इकोनॉमिक्स थे उनको क्या करते थे, अनलाइक करते, क्योंकि उनको क्या स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती नहीं थी। ही डिडंट क्लासिफाई हिज आइडियोलॉजी इनटू एन स्पेसिफिक कैटेगरी। He never wanted to give Gandhism nor wished to have his own followers। He didn't claim that he had discovered a new theory or ideology। He simply tried to apply the internal truths as solution to life's routine प्रॉब्लम। तो क्या होता था कि जो बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे, गांधी जी को क्या करते थे, अनलाइक करते, क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजी होती थी, जो उनकी विचारधारा होती थी, वो इतनी स्पेसिफिक होती नहीं थी। तो वो जो उनके मन में कभी विचारधारा कोई भी अच्छी आती तो वो किसी से अपने शेयर करते नहीं थे। तो वो क्या, उनकी लाइफ कहते थे एकदम सिंपल तरीके से, और हमेशा वो सच ही बोलते थे। तो उनकी जो रूटीन लाइफ में उनका जो सॉल्यूशन होता था, वो अपने तरीके से ही, क्योंकि वो क्या था, उनकी विल पावर क्या थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इस हिसाब से वो अपने हिसाब से जो भी काम करते थे, तो किसी को वो शेयर कर देते। क्योंकि अच्छा काम करने जाओ तो कुछ ना कुछ रोक टोक तो होता ही है।
तो इस हिसाब से ये इंट्रोडक्शन गांधी जी का कंप्लीट हुआ। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑन गांधी जी। कुछ यहाँ पे बुक्स और ऐसे थिंकर्स हैं जिससे गांधी जी क्या होते थे, उनसे इफेक्ट होते थे, उनको कुछ सीखने को मिलता था। देखते हैं कौन सी बुक्स और कौन से थिंकर्स थे। We can see influence of religious books, philosophers and events on Gandhiji's economic, social and political ideology. First है, Gandhiji was greatly influenced by the American thinkers. थोरो करके हैं, जो अमेरिकन थिंकर्स थे उनका नाम क्या था, थोरो। तो उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते थे। द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग was adopted from थोरोस वर्क। तो उसमें क्या था, उन्होंने एक थिंकर्स थे, तो वो कभी कभी ऐसा उनकी एक आइडिया था, उनका आइडिया था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादे तरीके से जियो और अपनी ज़्यादा क्या सोचो, अच्छा सोचो। तो उनका जो ये थिंकिंग थी सोचने की, तो वो उससे वो बहुत गांधी जी क्या होते थे, इन्फ्लुएंस होते थे, बहुत ही इफेक्ट करते थे, क्योंकि वो उनके काम से बहुत ही क्या थे, थोरो जो थे थिंकर्स, उनके काम से गांधी जी क्या बहुत खुश होते थे। उनकी ये एक बहुत ज़्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस होते थे इनकी इस वे बातों से। गांधी जी's idea of सर्वोदय was as inspiration from British written जॉन रस्किन बुक अनटू द लास्ट। अभी क्या होता था कि एक ब्रिटिश राइटर्स है जिनका नाम था जॉन रस्किन, इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। तो वो इनकी जो बुक्स है उनसे इंस्पायर हुए। उस बुक का नाम था अनटू द लास्ट, कि उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता था। उस बुक में क्या था, फ्रॉम दैट बुक ही डिराइव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वर्क एंड वेस्ट टू इंडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तो उनकी बुक्स में इनको एक ऐसी इंस्पायर हुए कि उस बुक्स से उनको क्या करना, क्या कि पूरे इंडिया में से गरीबों को क्या करना, नष्ट करना, और किसके बारे में सोचना, जो लेबर वर्क करते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना। तो ये उनकी बातों से, उनकी इस बुक से, रस्किन बॉन्ड की जो बुक से, उनसे बुक से ये क्या हुआ, बहुत ही इंस्पायर हुए। लियो टॉल्स्टॉय वर्ड्स दैट स्मॉल वी डू देन द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू इन्फ्लुएंस गांधी जी। लियो थॉट्स की जो वर्क था, उनका काम था वी शेल वी डू देन, हमको वो करना चाहिए जो हमको अच्छा लगता है। He was influenced by the theory of bread labor given by रस्किन बॉन्ड की एक बुक थी, उनसे वो भी एक्सपायर हुए एंड inspired by the, and thus he gave the motto that who didn't work had no right to eat। उनसे उनको क्या एक चीज़ सीखने की मिली, क्या मोटो मिला उनकी बुक से, कि जो काम नहीं करता है उसको खाने का कोई अधिकार नहीं है, नो राइट टू ईट। Moreover, in his childhood watched the play Satyavati Raja Harishchandra, and this left an indelible impression on him। वो चाइल्डहुड में एक प्ले देखते तो सत्यवती राजा हरिश्चंद्र, द प्ले थॉट्स हिम द इम्पोर्टेंट थॉट्स एंड मेड हिम सत्याग्रही। तो उनसे वो इम्पोर्टेंट थॉट्स मिला वो देखने से, सत्याग्रही। गांधी जी बिलीव्स पर्टेनिंग टू लेबरिंग वंस आउन ब्रेड। वो क्या सोचे, जो भी लेबर होते हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका अपना खुद का एक अधिकार होता है। वर ऑल्सो confirmed by the श्लोक इन द थर्ड चैप्टर ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता में जो 3rd नंबर का श्लोक है, उसमें से क्या उनको इंस्पायर हुए, किस बात से, विच इट सेट्स one who released the fruits without making offering, without efforts and sharing fruits with others। जो लोग अपने खाने को, अपने फ्रूट्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उनसे क्या होता है, इज
एडग्लिबिंग इन सिनफुल एक्शन। तो वो अपने जो भी पाप करते हैं, ये पाप हुआ कि अपने कुछ भी थोड़ा सा खाने को मिले, भले एक रोटी के नहीं, तो वो अपने आपस में शेयर करके खाएं, तो वो अच्छा काम हुआ। बट खुद बेचारा वो भूखा मर रहा है, वो अपने खा खा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि वो अपने पाप को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। There also is an impact of scripture like the Upanishad and the Ramayana, Mahabharata, and of Sant poets like Kabir, Guru Nanak, Narasimha Mehta, and also of scripture leader Srimad राजचंद्र ऑन गांधी साइड है। तो ये सारी जो उपन्यास हैं और ये स्क्रिप्चर्स है, ये सारी चीज़ों से गांधी जी बहुत ही इंस्पायर होते थे। तो गांधी जी क्या करते थे, जो अलग अलग थिंकर्स होते थे, अलग अलग जो अच्छे राइटर होते थे, पोएट्स होते थे, ये सारी चीज़ों की ये सारे लोगों की बुक्स पढ़ते थे, अच्छे अच्छे लोगों के जो थिंकर्स होते उनकी बातें सुनते थे, उनके लिए अच्छा काम करते थे। तो ये गांधी जी का आज उनके कंप्लीट हुआ। कल हम उनके कुछ थॉट्स देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड संबंधित। ओके।